Dear students, our today's topic is regulation of the cardiac activity. And regulation of the cardiac activity means there are certain organs or there are certain, you can say, systems in your body which regulate the functioning of your heart. And in this category, if I just tell you in the very short, so there are certain kinds of muscles. As we all know that your heart is made up of cardiac muscles, and you also studied that these cardiac muscles are very special. They are not found anywhere else in your body. So these, what is the important thing about these cardiac muscles is that they are auto regulated because they are special kinds of muscles, so they are auto regulated. And also we have certain kinds of special muscles that is called nodal tissue in our body, sorry, in a heart, that is AV node, SA node, Purkinje fiber, and bundle of His. All you have studied about it. These are also present in your heart, and they all combinedly regulate the cardiac activity of the heart. And not only these, there are certain other organs and systems are also there which also regulate your uh, cardiac activity of your heart. So our heart is known as myogenic heart. Basically, why we call is myogenic? Myo means something related to the muscles. That means our heart is uh, governed, or you can say our heart is regulated by the cardiac muscles and or these types of muscular tissues, because nodal tissues are also a kind of specialized muscular tissues. And also we have a neural center in our medulla oblongata. You have studied medulla oblongata, and I think you know that medulla oblongata is the part of the hind brain. So there is a neural center which is present in the medulla oblongata, and it also controls the cardiac activities through the various kind of or systems in your body. And brain ka jo system hai, there is a special system that is called ANS. It is called autonomous nervous system. And autonomous nervous system is again made up of two parts. One is called sympathetic and another is called parasympathetic nervous system. So autonomous nervous system is divided into two parts, sympathetic and parasympathetic nervous system. And these both work opposite to each other. For example, that neural signal which comes from the sympathetic nervous system है ना, क्योंकि sympathetic का अलग काम है, तो it increases the heart rate of your heartbeat. And कैसे करता है? By the वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके, है ना. एंड वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कार्डियक आउटपुट अच्छा देंगे. दैट मीन्स वो ब्लड को ज़्यादा पंप करेंगे. हार्ट से ब्लड को पंप करने को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. दैट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट. एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसका ऑपोजिट करेगा, बिकॉज सिंपैथेटिक हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, देन पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट. एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स द कार्डियक आउटपुट, ये भी क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा. सिंपल है. एंड लास्ट is adrenal medullary hormone. You have studied that there is a endocrine gland present near the kidney, that is called adrenal gland. And adrenal gland is made up of two parts, है ना. आपने अगर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो अभी हम नई क्लास में पढ़ लेंगे कि it is made up of, जो एड्रीनल ग्लैंड है, दिस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट. सपोज दिस इज़ एड्रीनल ग्लैंड, मान लो मैंने कट कर दी टीएस सिस्टम, तो दीज आर द टू पार्ट. हमेशा बायोलॉजी में बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला, एंड इधर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स. तो दिस एड्रिनल ग्लैंड बोथ दीज मतलब पार्ट्स, दैट मीन्स मेडुला ऑल्सो सिक्रीट सर्टन hormones and cortex also secrete certain hormones. So that's why we call them एड्रीनली मेडुलरी हार्मोन. दैट मीन्स एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन भी आपके कार्डियक आउटपुट को डिसाइड करते हैं. तो देर आर टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. वन इज़ that there is a central nervous system that is called medulla oblongata, which works with the help of autonomous nervous system. Autonomous nervous system made up of two parts, sympathetic and parasympathetic. And second thing which regulate your cardiac activity is the hormones which are secreted from the adrenal medulla. So these are all the things about the regulation of heartbeat. Now moving to the next topic, which is various kinds of disorders, circulatory disorders rather. And these circulatory disorders you have studied
one or two, I think, in junior classes, like high blood pressure you have studied, I think. But before you know about the high blood pressure, you have to know what is the normal blood pressure. That means normal blood pressure क्या होता है. And before knowing it, normal blood pressure, you have to know two terms. One is called systolic pressure and another is called, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डायस्टोलिक प्रेशर. कि ये दोनों क्या होते हैं. सिस्टोलिक प्रेशर, सपोज किसी नॉर्मल इंसान का अगर ब्लड प्रेशर जो है वो लिखना है तो आप लिखेंगे 120/80, है ना. ये ऐसा आपने लिखा हुआ बहुत बार देखा होगा ब्लड प्रेशर के लिए. जब आप डॉक्टर्स पे जाते हैं, उनको दिखाते हैं, तो डॉक्टर्स हमेशा लिख देते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है. तो दिस इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. तो दो चीज़ें हैं, एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर, दोनों दिए हुए हैं. तो अब इसमें जो 120 है, इट इज़ शोइंग सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज़ शोइंग डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है. अब बताती हूँ आपको कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं. व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स ड्यूरिंग मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका होना चाहिए 120 mmHg ब्लड प्रेशर. एंड डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स ड्यूरिंग मैक्सिमम वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये होना चाहिए 80 mmHg. हियर नो यूज़ ऑफ एट्रियम, क्योंकि वेंट्रिकल से ही ब्लड आगे जाता है. तो मैक्सिमम कितना जब प्रेशर पड़ता है आपके वेंट्रिकल्स पर ब्लड को फ्लो करते वक्त, वो कहलाता है सिस्टोल. और जब रिलैक्स कर रहा है आपका वेंट्रिकल, तब मतलब इन जनरल अगर आप किसी लेमैन को समझाओ तो उसको आप ये बोलोगे कि व्हेन योर हार्ट इज़ वर्किंग, दैट मीन्स वो जब ब्लड को पंप कर रहा है. और पंप कौन करेगा, वेंट्रिकल से निकलेगा ना बाहर ब्लड. तो जब ब्लड पंप कर रहा है तो जितना प्रेशर वेंट्रिकल में आया है उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर. और जब पंप कर चुका और वो रिलैक्स है आपका वेंट्रिकल, उस समय जितना प्रेशर है आपका हार्ट का वो है 80 mmHg होना चाहिए. ओके. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज़ द नॉर्मल वन. एंड अगर सपोज़ ये ज़्यादा हो जाए, अब ज़्यादा मीन्स कुछ भी, सपोज़ अब होना चाहिए था 120 अब हमने लिख दिया इसको 140/90, तो दिस इज़ नोन एज, या इससे ज़्यादा है सपोज़, तो इट कम्स इनटू द हाई ब्लड प्रेशर. इसको आप हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे या इसको आप हाइपरटेंशन बोलेंगे. एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन बिकॉज इट लीड सर्टेन डिजीजेज विच अफेक्ट्स योर वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी. इन पे असर डालते हैं. और भी कोई ब्लड कैपिलरीज हैं, दे कैन रैप्चर. तो बाई एक्सरसाइजिंग एंड लूजिंग द वेट, है ना, अपनी बॉडी वेट अगर आप मेंटेन कर लो तो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर हेल्दी वेट. एंड ऑल्सो जो ऑयल ईचिंग है, ये सब चीज़ें अगर हम नहीं खाएं तो वी कैन कंट्रोल इट. देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम कि कंट्रोल में नहीं आएगा, तो ये कंट्रोल में आ जाएगा. तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि क्या होता है सिस्टोलिक एंड क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर. और ये मर्करी के अगेंस्ट जो है वो इसको लिया जाता है. क्योंकि अब मेजरमेंट अगर हम करते हैं ब्लड प्रेशर, तो आपने देखा है डॉक्टर्स आपके हाथ में, मतलब जो भी आपका तो नहीं लेकिन जिनका आपने देखा होगा, वो एक बैंड सा जो है रैप कर देते हैं, है ना, और वो पंप सा करते हैं और उसमें से मर्करी का वो देखते हैं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. तो विद द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर. ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फेग्नो मैनोमीटर. की हेल्प से वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर. तो उसकी हेल्प से हम स्फेग्नो मैनोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं. एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑल्सो स्टूडेंट्स विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल एज फैक्टर इज़ देयर, है ना. जब एज ज़्यादा हो जाती है बंदे की तो भी उसको ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. समटाइम्स आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू द आर्टरीज़ में. जैसे मैंने बताया कि जो आर्टरीज़ ब्लड ले जाती हैं वो कई बार उनके अंदर कुछ डिपोजिशंस हो जाते हैं, तो उनकी ल्यूमेन शॉर्ट मतलब सॉरी कम हो जाती, सक्रिय हो जाती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. या इलास्टिसिटी कई बार ब्लड वेसल्स की जो है वो पुअर हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स. दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ द हाइपरटेंशन. तो अगर किसी को लगातार ब्लड इंक्रीज़ रहता है, दैट मीन्स परसिस्टेंट इंक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन. कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको हम हाइपरटेंशन नहीं बोलते. पर हमेशा अगर बढ़ा रहता है उसका ब्लड प्रेशर, सपोज़ जितना मैंने आपको बताया नॉर्मल, उसके अलावा अगर उसका ब्लड प्रेशर हमेशा, जब भी कभी भी आपने मेजर किया और आपको उसका ब्लड प्रेशर मिला हमेशा 150/90 मिल गया या समथिंग ऐसा लाइक दैट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका हाइपरटेंशन है. और अगर इसी को मैं कहूँ कि ये कम है अगर, ठीक है, अगर आपको कम मेजर करने में आ रहा है, सपोज़ ये ऊपर वाला 100 है और नीचे वाला आपका डायस्टोलिक 50 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि दोनों ही होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, एंड बोथ आर
इक्वली डेंजरस। ऐसा नहीं कि लो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा होता है, ये भी डेंजरस होता है, इसमें भी बंदा बेहोश हो जाता है, कई बार फेंट हो जाता है, हीमोरेज हो जाता है कई बार, है ना, और कई बार हार्ट पंप करना ही भूल गया बीच में से तो डेथ भी हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो डेंजरस, बोथ द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द हार्ट. Now come to the next. I have written it here, and there are certain diseases which are given in your book also, and one by one we are going to study about them. First we have discussed, that is heart hypertension. Now we come to the coronary heart disease. Coronary heart disease is commonly known as coronary artery disease, and it is also referred as the atherosclerosis. And why we call this atherosclerosis? Suppose this is the blood vessels, students, है ना, ये blood vessels है जो blood ले जाती है, and by the deposition of calcium, fat, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, ये इन चीज़ों में से किसी का भी इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, मीन्स ये इसमें पूरे जम जाते हैं। सपोज आप समझ लो कैल्शियम है, या आप समझ लो कि ये जो भी आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग दैट कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू, दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, कई बारी तो ये डिपॉजिट हो जाता है। नाउ ये कवर इसने सब कर लिया, पूरा इतना एरिया ये पूरा इस टिश्यू ने कवर कर लिया। नाउ सी कितना थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, दिस मच, है ना, और अब इसमें से ही होकर के ब्लड ने जाना है। तो अब देखो कोई पाइप इतना चौड़ा था, है ना, और इसको आपने सकरा कर दिया एकदम, ये इतना चौड़ा पाइप था और इसको आपने सकरा कर दिया, इतना थोड़ा रह गया अब ये, तो कितना कम है देखो ब्लड के जाने के लिए। तो प्रेशर डालता है किस पे, ल्यूमेन में, ल्यूमेन मीन्स कैविटी, तो ये आर्टरी है, तो इस आर्टरी के ल्यूमेन पर ये क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा ना। क्यों प्रेशर डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये जो इतनी बड़ी आर्टरी थी, जो इतने में से बड़े में से ब्लड होकर के जा सकता था, अब नहीं जा पा रहा है, अब ये सारा कवर हो गया है ना, अब ये तो है ही नहीं है हिस्सा, बिकॉज इट इज़ डिपॉजिटेड बाई द कैल्शियम और अदर फाइब्रस सब्सटेंसेस। तो अब तो ये बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो अब ये जो थोड़ा सा रह गया है इसमें से ही होकर के आपका ब्लड, ये इतना हिस्सा रह गया सपोज कर लो, अब ये इतने में से होके जाएगा आपका ब्लड, ये इतने में से जो मैंने ग्रीन कर दिया है ना, तो इट विल कॉज द प्रॉब्लम फॉर द यू कैन से ट्रेवलिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि अब ब्लड यहाँ से वहाँ जाने के लिए तो प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं समटाइम्स, कैल्शियम वगैरह, तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड एंजाइना. व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, एंड द सिम्टम इज एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चेस्ट में पेन होता है, और वो होता किस वजह से है, क्योंकि हार्ट मसल्स डिड नॉट गेट द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाती है किसको, हार्ट मसल्स को। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो इन दैट केस मसल्स में ट्विच होता है एक तरह से, और उसमें बहुत पेन होता है, हार्ट आपके हार्ट के पास में आपको महसूस होगा, कई बार हैंड्स में भी महसूस होता है वो पेन, एंड इट कैन बी अकर इन एट एनी एज, किसी भी इंसान को, मैन या वुमेन को हो सकता है, एज इज़ नॉट बाउंड कि ओल्ड एज इंसान को ही होगा या फिर बहुत कैसे भी बूढ़े इंसान को होगा, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट एज बाउंड, मिडिल एज्ड पर्सन को भी हो सकता है एंड समटाइम्स यंग पर्सनस को भी हो सकता है, बट बेसिकली मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल को ही ये होता है, एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट द ब्लड फ्लो. नाउ कम टू द लास्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड heart failure. This one, heart failure means the state of heart when it is not pumping the blood, because students see you have heard three names, heart failure, heart attack and the cardiac arrest, है ना, ये तीन नाम आपने सुने होंगे, but these three are not the same, they are different. Heart failure means it is the state where heart is not pumping the blood, and when heart is not pumping the blood, obviously body did not get the oxygen, है ना, क्योंकि blood से तो ऑक्सीजन मिलता है, तो बॉडी को ब्लड भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, क्योंकि कंजेशन ही इसका मेन प्रॉब्लम है, कंजेशन ऑफ लंग्स समटाइम्स, कंजेशन ऑफ लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, तो इसलिए उसको कंजेशन से हमने इसको कंसर्न किया है, कनेक्ट किया है। एंड हार्ट फेलियर जो है ये कार्डियक अरेस्ट की जैसा नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट मीन्स समटाइम्स हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, बीट करना बंद कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। एंड समटाइम्स हार्ट अटैक भी वर्ड सुना है आपने, वहाँ पर क्या होता है, व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड ड्यू टू द अनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, कई बार क्या होता है कि ब्लड सप्लाई सडनली हार्ट में होती नहीं, हार्ट को मिलता ही नहीं ब्लड, और वो जो मसल्स हैं सडनली डैमेज हो जाती हैं, और उसको हम बोलते हैं फिर हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। तो दीज थ्री थिंग्स आर डिफरेंट. तो स्टूडेंट, now we come to the end of the chapter, and we have done all the things. I hope you understand very well, because this chapter is very easy and interesting also.
until unless you are not studying it, है ना. जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप तो नहीं समझ सकते इसको, but once you study it you can find it very easy. And now your homework is that you have to solve all the questions which are given in your the back exercise, and also read the chapter carefully, and if you find any difficulty kindly let me know, and we will meet in the next